everyone, in this video we are going to talk about methods of preparations of aryl halide. But before watching this video, if you have not watched the video of classification of halogen derivatives, first watch that video, the link is there in the description box. Now let us begin with the reaction, which is electrophilic substitution. So in 11th standard you have learnt about two types of reagents, electrophiles and nucleophiles. The name suggests that electrophiles are electron loving reagents, nucleophiles are nucleus loving reagent. Now when will some reagent love electrons, or when will some reagent get attracted to electrons? It is only when that particular reagent lacks electrons. It will have less number of electrons, therefore it gets attracted towards electron. So these electrophilic reagents are nothing but electron deficient reagents, or we can say the reagents which get attracted towards electrons. On the other hand, nucleophilic reagents or nucleophiles are going to be electron rich reagents, but right now we are going to talk about electrophiles, that is electron deficient reagents. Now in this reaction, the catalyst that we are going to use is, all the catalysts that we are going to use are Lewis acids. Examples are FeCl3, namely anhydrous FeCl3 or anhydrous FeBr3 or Fe or BCl3. So you can use any of these Lewis acids as a catalyst. These Lewis acids in the reaction act as halogen carrier. Now let us begin with the actual reaction. The meaning of the term electrophilic substitution is replacement of hydrogen by electrophile. So the hydrogen in the compound that we are going to learn will go away. The hydrogen will go, and in that position, or we can say electrophile will take the position of hydrogen. So now let us begin with the first example of the reaction. Here I have taken the simplest aromatic compound that we all know is benzene, whose molecular formula is C6H6. So now you can easily see that there are 6 carbons. Now where are the hydrogens? This is the bond line formula of benzene, where there is no need to show the hydrogen, but hydrogens are present. We have not shown, but yes, hydrogens are present over here, but no need to show those hydrogens. But only for the purpose of understanding, I will draw all the 6 hydrogen atoms here on the compound. So in this way, there are 6 carbon atoms and 6 hydrogen atoms forming benzene, that is C6H6. Now this benzene reacts in presence of our Lewis acid. Here I have taken anhydrous FeCl3. So in presence of Lewis acid, it reacts with halogen. Which halogens? It reacts with chlorine and bromine. It would react with chlorine and bromine. So instead of writing chlorine and bromine separately, we have written it in general as X2, where X2 stands for Cl2 or Br2. So now let us see how the reaction is going to take place. So instead of writing X2, can I write it as X single bond X? X2 के जगह पे I have written it as X single bond X. Now what is going to happen is, one of the hydrogen atom will be replaced by one of the halogen atom. So now you can replace any of the 6 hydrogen atom. For convenience, right now I am choosing this hydrogen atom, but any of the 6 can be replaced. The structure or the product that you are going to get will be same. So let us see what is going to happen. It's this. There is formation of HX. This hydrogen and this halogen will react and form HX. So the byproduct of the reaction is going to be HX. Now as this hydrogen goes away and reacts with one of the atom of halogen,
there is one more atom of halogen, one more X present, that X will come and take the position of halogen. So this is how our product will look like. So we have chosen the hydrogen atom which was present over here. Now that hydrogen atom is gone, and instead of that hydrogen atom, halogen has taken the position of hydrogen, and our byproduct is HX. Now since we have started with benzene, the product that we are going to get is going to be halobenzene. So there are two products possible. If we use chlorine as the reactant, we will get chlorobenzene. If we use bromine as the reactant, we will get bromobenzene. So let us study one more reaction. You are taking Cl2 as the example. You can practice writing same type of reaction with Br2. I have taken Cl2, so you can try it with Br2. Now similarly, just like our first benzene, here also there are going to be 6 hydrogen atoms. And what we can do is, we can write this Cl2 as Cl single bond Cl. So right now let us choose some another hydrogen atom right now. You can choose any of the 6, I repeat, but right now let us choose this hydrogen atom. So this hydrogen atom will react with chlorine and it will form HCl. This hydrogen atom with chlorine atom will form HCl. फिर क्या होगा? Here also we are not showing other hydrogen atoms, but these hydrogen atoms are there. Only this hydrogen atom over here, this hydrogen atom which was present over here, जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो गया, अभी क्या होगा? The second chlorine atom, एक तो रिएक्ट हो गया इसके साथ, इसके साथ रिएक्ट हो गया, फिर दूसरा जो क्लोरीन का एटम है, it will take the position of hydrogen. So basically दोनों भी रिएक्शन में क्या हुआ है, जहाँ पे एक हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन चला गया और उसके जगह पे हैलोजन आ गया. सो ये वाले कंपाउंड का नाम है क्लोरोबेंजीन. Plus HCl is our side product. I repeat, hydrogens are there everywhere. यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी हाइड्रोजन हर एक कार्बन पे है, बस यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन जाके उसके जगह पे X आ गया. इधर भी यहाँ पे जो पहले हाइड्रोजन एटम था वो चला गया, उसके जगह पे क्लोरीन आ गया. सो ये वाले रिएक्शन में बस इतना ही करना है. सब 6 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को निकाल के उसके जगह पे हैलोजन को लिख देना, बस इतना ही है. So now here we have mentioned that this X2 or this halogen that we are using over here can be only chlorine and bromine. Why not fluorine and iodine? So let us see why there should be only chlorine and bromine. If we use fluorine and try to carry out this reaction, then the reaction is going to be explosive and वो reaction हम control नहीं कर सकते. Since you cannot control this reaction, such kind of reaction is not carried out in the lab. It is not advisable to carry this reaction in the lab. So fluorine तो out of question हो गया. So now let us see what happens when you use iodine. So now बेंजीन से अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो हमको क्लोरोबेंजीन मिलता है. सिमिलरली अगर बेंजीन का आयोडीन के साथ रिएक्शन किया तो हमको आयोडोबेंजीन मिलेगा. ये बेंजीन में से
दिस इज द बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग में से कोई भी एक हाइड्रोजन, लेट अस अज्यूम दैट ये वाला हाइड्रोजन निकाल लेना है। 5-6 में से कोई भी एक हाइड्रोजन निकाल लेने का। मैंने ये वाला निकाला और हाइड्रोजन निकाल के उसके जगह पे आयोडीन को लिख देने का और साइड प्रोडक्ट बनेगा HI। So we have successfully formed iodobenzene from benzene। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है that this reaction is a reversible reaction. The first reaction that we have learned over here is not reversible, but reaction with iodine is reversible reaction. इसका मतलब क्या होता है? We have learned this in class 11, in standard 11, in the chapter called as chemical equilibrium. Whenever there is a reaction which is reversible, reactants will form the products, and at the same time products will form our reactants back. जैसे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का भी वापस रिएक्टेंट बनेगा। सो देयरफॉर वी कॉल सच रिएक्शंस एज रिवर्सिबल। अभी ये ऐसा वाला जो रिएक्शंस है जो इरिवर्सिबल है, दैट रिएक्शन विल ऑलवेज गो टू द कंप्लीशन, बिकॉज जितना भी रिएक्टेंट है उसका प्रोडक्ट तो बन ही जाएगा। बट ऐसे वाले रिएक्शंस, द रिएक्शंस व्हिच आर रिवर्सिबल रिएक्शंस, उसका जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट में से वापस रिएक्टेंट भी बना देगा। सो वी कैन से दैट सच काइंड ऑफ रिएक्शंस विल नेवर गो टू द कंप्लीशन। वो पूरा का पूरा होगा नहीं। उसका मतलब हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और एक्सपेक्टेड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा कम मिलेगा। So now what we can do is we can shift the equilibrium. In Lee-Chatelier's principle, we have studied how we can shift the position of equilibrium. So उसके लिए अपने पास दो मेथड है। इधर हमको करना क्या है? We need to shift the equilibrium to the forward direction or to the product side. अगर equilibrium product side में या फिर forward direction में shift हो गया तो product ज्यादा बनना चालू हो जाएगा और हमें ज्यादा से ज्यादा product और ज्यादा से ज्यादा quantity मिलेगा। Okay, but if we want to shift the equilibrium to the product side or to the or in the forward direction, there are two methods. एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, reactant ऐड करने का। If you add the reactants, then reaction goes to the forward direction. और दूसरा क्या कर सकते हैं, reduce the product। अगर products को कम कर देंगे या फिर products को निकाल देंगे तो products निकालने के बाद भी रिएक्शन अपना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अभी रिएक्टेंट बढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है, कितना भी रिएक्टेंट बढ़ाओ रिएक्शन तो रिवर्सिबल होने ही वाला है, वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने ही वाला है। सो रिएक्टेंट ऐड करने में कोई मतलब नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, टू रिमूव द प्रोडक्ट। अभी ये अपना मेन प्रोडक्ट है एंड ये बाय प्रोडक्ट है। सो द इजीएस्ट वे इज टू रिमूव, ये वाला रिमूव करने से अच्छा हम अपना बाय प्रोडक्ट ही रिमूव कर दे। सो we will try to remove this HI from the reaction mixture। तो अगर हम HI को remove करने में successful हो गए तो क्या होगा, the quantity or the concentration of HI will reduce। as the concentration of product HI will reduce, the equilibrium will shift to the right direction। so इसीलिए हमको क्या करना है, ये रिएक्शन में हमें बस किसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 के जैसे किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना है। Now what will this oxidizing agent do is, this oxidizing agent will react with HI। तो जैसे ही HI का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन हो जाएगा, HI का क्वांटिटी कम होगा। so as the concentration or as the quantity of HI reduces, the equilibrium will shift in the forward direction। और जैसा ही equilibrium forward direction में shift हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट जो कि आयोडोबेंजीन है, the concentration of the product will be increased। so this is how, even though this reaction with iodine is reversible, फिर भी हम लोग उससे ज्यादा से ज्यादा और मैक्सिमम प्रोडक्ट ले सकते हैं by just adding oxidizing agent in the
reaction. After studying two simple reactions, now let us go to a little complicated reaction in the same category. So now here, instead of beginning with just our simple benzene, now we are beginning with this structure which is called as toluene, and we are going to see the reaction between toluene and chlorine. So here I have written toluene plus chlorine. So similarly, electrophilic substitution is going to take place. One of the hydrogen will be replaced by halogen, that is chlorine, in this particular reaction. But अभी question ये है कि ये 5 हाइड्रोजन में से कौन सा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा. So first of all, हमें ये डिसाइड करना है कि ये 5 में से कौन सा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके उसके जगह पे क्लोरीन चला जाएगा. सो नाउ इन दिस सिचुएशन द ग्रुप दैट यू कैन सी ओवर हियर, ये जो CH3 है और ये Cl भी है, इट इज कॉल्ड एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. उसका मतलब मैं थोड़ा बाद में समझाती हूँ. सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ऑर्थो एंड पैरा मतलब होता क्या है. 11th स्टैंडर्ड में नॉमेनक्लेचर में ये पढ़ाई होगा, बट फिर भी एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं. अगर हम ये वाले कार्बन के पोजीशन को अपना फर्स्ट पोजीशन मानते हैं, ओके, अगर ये वाले पोजीशन को हम अपना फर्स्ट कार्बन ऐसा नंबर दे देते हैं, तो ये भी दूसरा हो सकता है, ये भी दूसरा हो सकता है, दोनों भी सेम है. सो ये वाला भी दूसरा हो सकता है और ये वाला भी दूसरा हो सकता है. देन ये वाला कार्बन थर्ड कार्बन होगा. सिमिलरली अगर ये साइड से देखेंगे तो ये वाला थर्ड होगा एंड ये कार्बन फोर्थ कार्बन होगा. तो अगर राइट यहाँ से वन एक साइड से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसा नंबरिंग आएगा. ये साइड से स्टार्ट करेंगे तो भी 1 2 3 4 ऐसा नंबरिंग आएगा और दोनों भी नंबरिंग करेक्ट है. सो सबसे पहले ये याद रखो कि ये दोनों भी कार्बन सेकेंड कार्बन है, ये दोनों भी थर्ड है और ये दोनों भी फोर्थ है. ये ऑर्थो पैरा समझने के लिए, ओके, दोनों भी साइड से नंबर करोगे तो भी करेक्ट आंसर आएगा. नाउ अभी प्रोडक्ट के लिए देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट. सबसे पहले क्या हो सकता है, ये सेकेंड वाले पोजीशन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है. तो सबसे पहले ये वाला हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह पे क्लोरीन लिख देते हैं. ये CH3 है, ये अपना पहला पोजीशन है. तो अपना एक पहला पॉसिबिलिटी है, द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज द सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस ऑन द सेकेंड कार्बन एटम. अगर ये पहला है तो ये दूसरा हो जाएगा. सो द सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस ऑन द सेकेंड कार्बन एटम. दैट मीन्स ये वाला हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन will be replaced by chlorine. So बस ये वाले हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह पे मैं क्लोरीन लिख दूंगी. अभी यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है. ऐसा भी हो सकता है कि ये फोर्थ वाला कार्बन निकल के उसके जगह पे क्लोरीन आ जाए. क्लोरीन में टेक द पोजीशन ऑफ फोर्थ कार्बन ऑल्सो. फोर्थ कार्बन पे क्लोरीन अटैच हो सकता है, मतलब फोर्थ वाले कार्बन का हाइड्रोजन का पोजीशन क्लोरीन ले सकता है. ये टोल्यूइन है, ये अपना फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ. ये साइड से आओगे तो भी ये फोर्थ आएगा. फोर्थ वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो उसके जगह पे हम क्लोरीन लिख देंगे. सो नाउ द प्रोडक्ट्स दैट वी हैव, एक प्रोडक्ट हमारे पास है 1,2 वाला प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट है 1,4 वाला प्रोडक्ट. मतलब समझने के लिए कि यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है
और यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है। नाउ जब भी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट होता है जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे ओनली फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसको हम ऑर्थो प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कार्बन आइटम को हम लोग ने फर्स्ट कार्बन माना एंड अगर ये सेकेंड कार्बन है, समझो इधर कोई P है और यहाँ पे कोई Q है, तो ऐसे वाले सब्सटेंस को हम लोग ऑर्थो प्रोडक्ट बोलते हैं। अभी उसी के जगह पे अगर फर्स्ट और फोर्थ पे सब्स्टिट्यूएंट हो, समझो कि यहाँ पे एक कोई सब्स्टिट्यूएंट है P, देन सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है Q, तो उसको हम लोग पैरा प्रोडक्ट ऐसा बोलते हैं। So now if you observe here in the first product, सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन पे है? अगर इसको पहला कार्बन बोला तो पहले एंड दूसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये वाला प्रोडक्ट ये ऑर्थो प्रोडक्ट के जैसा सेम है, फर्स्ट और सेकंड बाजू बाजू के कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थो प्रोडक्ट। और ये वाला प्रोडक्ट क्या है? जिधर फर्स्ट कार्बन, अगर ये अपना फर्स्ट कार्बन है तो ये सेकेंड होगा, थर्ड एंड फोर्थ होगा। अभी सब्स्टिट्यूएंट किधर है? फर्स्ट पे है एंड फोर्थ पे है, तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग पैरा प्रोडक्ट बोलते हैं। सो ये वाला जो अपना प्रोडक्ट है इट इज कॉल्ड एज पैरा प्रोडक्ट। अभी इसका नाम कैसे लिखेंगे? अभी इसमें 1,2 या फिर 1,4 ऐसा अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी मेंशनिंग दीज टू वर्ड्स ऑर्थो एंड पैरा। ये ऑर्थो एंड पैरा का ही मतलब होता है 1,2 एंड 1,4, इसी का मतलब ये होता है, इसीलिए उसको दोबारा 1,2 या फिर 1,4 ऐसा लिखने का जरूरत नहीं है। हम लोग बस सिंपल लिख देंगे। हम लोग ने स्टार्ट कहाँ से किया था? वी बिगेन विथ टोल्यूइन। टोल्यूइन के ऊपर हम लोग ने क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन किया, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो होना चाहिए क्लोरोटोल्यूइन। बट ये पहला वाला जो प्रोडक्ट है वो ऑर्थो प्रोडक्ट है, 1,2 प्रोडक्ट है, इसीलिए वो क्या हो गया? ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया। इसीलिए क्लोरो से पहले हम लोग O लिख के हाइफन बना देंगे। सो O स्टैंड्स फॉर ऑर्थो एंड ये नाम क्या बन गया? ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन। यहाँ पे C कैपिटल लिखना है बट T कैपिटल लिखना नहीं है, ओनली C हैज टू बी कैपिटल। वैसे ही ये दूसरे प्रोडक्ट का नाम अभी क्या बनेगा? क्लोरोटोल्यूइन तो है, बट वो कैसा वाला क्लोरोटोल्यूइन है? 1,4 टाइप का सब्स्टिट्यूशन है इधर, तो इसको हम बोलेंगे पैरा क्लोरोटोल्यूइन। सो पैरा के जगह पे हम लोग P लिख देंगे। सो विल नेम दिस कंपाउंड एज पैरा क्लोरोटोल्यूइन। पैरा क्लोरोटोल्यूइन। अभी मैंने जो पहले बोला था ये ग्रुप है CH3 ग्रुप, मतलब अल्काइल ग्रुप। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसका मतलब क्या है? कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड पे अगर CH3 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो अब एंड उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो वो सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पोजीशन पे होगा या फिर वो सब्स्टिट्यूशन पैरा पोजीशन पे होगा। सो अभी तक हम लोग ने सेकेंड पोजीशन को क्या बोलते हैं, 1,2 को क्या बोलते हैं देख लिया, 1,4 को भी क्या बोलते हैं वो देख लिया। अभी थर्ड वाला देखते हैं। इमेजिन दैट यहाँ पे एक कोई सब्स्टिट्यूएंट है, हम इसको
फर्स्ट कार्बन मानेंगे, ये सेकेंड, ये थर्ड, एंड इमेजिन दैट on third third carbon there is one substituent Q. So एक substituent first carbon पे है और दूसरा है third carbon पे. So ये अपना 1,3 टाइप का कंपाउंड बन गया. So ये 1,3 टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं मेटा प्रोडक्ट. जैसे ऑर्थो का ही मतलब 1,2 है, पैरा का ही मतलब 1,4 है, वैसा मेटा का ही मतलब होता है 1,3. अभी ये वाले रिएक्शन में जो हम लोग ने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर हम टोल्यूइन से स्टार्ट करते हैं तो हमको बस 2 टाइप का प्रोडक्ट मिलता है. ईदर यू गेट ऑर्थो प्रोडक्ट और यू गेट पैरा प्रोडक्ट. मतलब सब्स्टिट्यूशन या तो सेकेंड कार्बन पे होगा या तो फोर्थ कार्बन पे होगा, बट थर्ड कार्बन पे यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा. ना तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ना तो यहाँ पे है. सो बेसिकली थर्ड कार्बन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा. इन अदर वर्ड्स वी कैन से हमें मेटा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हमें बस 2 प्रोडक्ट मिलेगा. ऑर्थो प्रोडक्ट विच इज 1,2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट विच इज 1,4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट. अभी तुम्हारे लिए दो प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स है. ये वाला एग्जाम्पल वेयर वी बिगिन विद टोल्यूइन प्लस ब्रोमीन, एंड दूसरा वाला एग्जाम्पल वेयर वी स्टार्ट विद क्लोरोबेंजीन प्लस क्लोरीन. अभी ये तुम लोग को रिएक्शन सबसे पहले सॉल्व करना है और उसके बाद में ही वीडियो कंटिन्यू करना है देखने के लिए कि तुम्हारा आंसर करेक्ट है या नहीं. बट ये वाले रिएक्शन में कुछ तो मिसिंग है. क्या मिसिंग है? बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन मिसिंग है. सो लेट अस सी हम ये रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं. सबसे पहले प्रोडक्ट में अपने पास 2 बेंजीन टाइप का बेसिक रिंग्स है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स है, ऐसा बोलते हैं. 2 सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स है, इसीलिए यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए. करेक्ट. अभी ये दोनों के साथ हमें बाय प्रोडक्ट भी मिलेगा, दोनों के साथ बाय प्रोडक्ट भी हमको मिलेगा. अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूट होता है तो एक HCl मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट का एक और HCl मिलेगा. तो यहाँ पे भी हमें 2 टाइम्स HCl ऐसा लिखना पड़ेगा और उसको भी बैलेंस करने के लिए 2 टाइम्स Cl2 लिखना पड़ेगा. अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो वापस करते हैं. अभी इतना ही देखो. हाँ, 2 सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स है, उसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लिख दिया. उसके साथ साथ हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है, HCl बनता है, वो सबको ऑलरेडी पता है. द बाय प्रोडक्ट दैट वी गेट इज HCl. जैसे पहले वाले रिएक्शंस में HCl, HBr, HI ऐसे सब मिला था, वैसे ही यहाँ पे भी HCl मिलेगा. अभी सोचो रिएक्टेड साइड में तो बस 2 क्लोरीन आइटम्स है और प्रोडक्ट साइड में ये एक क्लोरीन आइटम है, ये दूसरा क्लोरीन आइटम है और ये तीसरा क्लोरीन आइटम है. सो यहाँ पे सिर्फ 2 क्लोरीन आइटम, Cl2 मतलब 2 आइटम्स है, यहाँ पे 3 आइटम्स है. तो अभी इसको बैलेंस करना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा. तो ये बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे. If we make HCl as 2 times HCl, अभी क्या होगा, ये एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का, ये एक और मॉलिक्यूल क्लोरीन का, मॉलिक्यूल नहीं सॉरी एटम, ये एक क्लोरीन का एटम, ये एक क्लोरीन का एटम और यहाँ पे क्लोरीन का 2 एटम हो गया. मतलब टोटल प्रोडक्ट साइड में 1 2 3 4 क्लोरीन एटम्स हो गए. यहाँ पे 4 क्लोरीन आइटम्स हो गए, बट यहाँ पे Cl2 मतलब 2 ही क्लोरीन आइटम्स है. सो उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे वापस 2 लगा देंगे. सो 2 into 2 will become 4. Now on both the sides we have
we have 4 chlorine atoms and 4 chlorine atoms. Similarly, our substituted benzene rings are also balanced. So therefore, number of hydrogen atoms are also balanced. Now let us solving these two examples that I have written on the board. Here I have taken toluene as the starting material. Toluene plus Br2 in presence of Fe and dark room, because this reaction is conducted in dark room. So now ये जो CH3 group होता है and Cl group होता है, both the groups are ortho para directing groups. So जैसे मैंने बोला substitution किधर होगा, ortho position पे होगा या फिर para position पे होगा. So now there are two options, either ortho or actually there are both products, ortho as well as para. So let us draw two products. This is our toluene and one of the hydrogen will be replaced by bromine. So सबसे पहले हम लोग ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेंगे. ऑर्थो मतलब 1,2 वाला पोजीशन. सो अगर ये अपना फर्स्ट कार्बन हुआ तो ये बनेगा सेकेंड कार्बन. तो सेकेंड कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है, दैट हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन. सो आई विल राइट डाउन Br over here, and in the next product this is our toluene and hydrogen at para position will be replaced by bromine. So para position is nothing but 1,4 wala position. So this is our first carbon, second, third and fourth. So at this carbon substitution will take place. So I will write Br over here. करना बस इतना ही है कि हाइड्रोजन को निकाल के, निकालना मतलब हम लोग लिखते ही नहीं है हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन को निकाल के उसके जगह पे हैलोजन लिख देने का. कौन से पोजीशन पे? पहली बार ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरे प्रोडक्ट में पैरा पोजीशन पे. प्लस we will have HBr. Now let us write down names of these products. So what will be the name of this product? ये 1,2 वाला प्रोडक्ट है, so इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे ऑर्थो ब्रोमो टोल्यूइन, बिकॉज हम लोग ने टोल्यूइन से स्टार्ट किया था, उसमें ब्रोमीन का एडिशन हुआ है. पहले से टोल्यूइन है, उसमें हम लोग ने ब्रोमीन का एडिशन किया. सो ये बेसिक स्ट्रक्चर तो टोल्यूइन ही रहेगा, उसमें ब्रोमीन ऐड हो रहा है, इसीलिए इसका नाम बनेगा ऑर्थो ब्रोमो टोल्यूइन. ऑर्थो ब्रोमो टोल्यूइन. सिमिलरली यहाँ पे कैसे होगा? पैरा प्रोडक्ट है, 1,4 वाला सब्स्टिट्यूशन है, इसीलिए इसका नाम होगा पैरा ब्रोमो टोल्यूइन. अभी क्या बचेगा? बैलेंसिंग बचेगा. तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2. सो अभी बैलेंसिंग भी हो गया. नाउ लेट अस गो टू द सेकेंड रिएक्शन. इन सेकेंड रिएक्शन वी आर स्टार्टिंग विथ क्लोरोबेंजीन. We are beginning with chlorobenzene plus chlorine in presence of anhydrous FeCl3. अभी यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन होके दो प्रोडक्ट्स मिलेगा, एक होगा ऑर्थो प्रोडक्ट, एक होगा पैरा प्रोडक्ट. दिस इज अवर क्लोरोबेंजीन. पहले प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूशन होगा ऑर्थो प्रोडक्ट पे, मतलब यहाँ पे प्लस सेकेंड प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूशन होगा पैरा पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे प्लस HCl. फिर उसको अभी बैलेंस भी करना है. Now let us try and write down the names of the reaction.
Now अपना basic structure that we have taken is chlorobenzene and we are adding one more chlorine to it. So can we say that now we have got two chlorine atoms in the same product. So instead of just saying chlorobenzene, now we have to call this as dichlorobenzene. मतलब two chloro atoms plus benzene. So now we have to call this as dichlorobenzene. अभी ये ऑर्थो प्रोडक्ट है और ये पैरा प्रोडक्ट है, इसीलिए हम लोग नाम भी ऐसा ही लिखेंगे. फर्स्ट वन इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन. एंड सेकेंड प्रोडक्ट होगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. अभी ऐसा ही रिएक्शन, कैन वी डू दी सिमिलर रिएक्शन with addition of iodine? If we want to do the reaction with addition of I2, the reaction is going to be reversible, and as we have seen earlier, what we have to do is we have to add some oxidizing agent so that oxidizing agent reacts with HI. जैसे ही वो HI के साथ रिएक्ट होगा, HI का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन. नाउ अभी ये जो रिएक्शन ऑफ HI विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अपने पोर्शन में नहीं है, इसीलिए मैं उसका रिएक्शंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. Those who are interested can open the description box and see those reactions. Thank you so much for watching.